Okay, Sneha. So continuing with respiration now. In the previous lecture, सबसे पहले हमने देखा था कि what exactly is respiration, right? Why it is carried out across living organisms, है ना? And then ultimately the main thing that we have seen कि पहले मैंने पूछा था what is respiration, so you spoke about breathing. So now you know very well that breathing is a superficial aspect, exchange of gases, and respiration is the physiological process that takes place in the living cells. ठीक है, तो हमने दो टाइप देखा था respiration का, aerobic and anaerobic. Right? Aerobic respiration is also called as oxybiotic respiration, and anaerobic respiration is also called anoxybiotic respiration. Okay, so aerobic and anaerobic दोनों का जो common step है, which one is it? Which is the first step and the common step for aerobic and anaerobic? Glycolysis. Glycolysis, also called as EMP. what? हाँ. EMP क्या? EMP. हाँ. EMP. EMP. EMP की. Will you call it a cycle or a EMP pathway? यार. हाँ, EMP pathway. हाँ, इसको cycle नहीं बोलेंगे glycolysis को, है ना? Because it is not a cyclic process. It has got a starting point. That is, the starting point is glucose, and glucose का पूरा glycolysis होकर what is the, yeah, what are the products glycolysis का? Pyruvic acid. Correct. How many molecules? 2 molecules of ATP. ATP. हाँ नहीं, वो तो net gain है. हाँ. But pyruvic acid के कितने molecules बनते हैं एक glucose से? एक ही. 1 molecule of glucose gives you how many molecules of pyruvic acid? Recollect. 3. ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 carbon. तो 6 कार्बन का 1 molecule, that is the beginning. So by the time glycolysis ends, you are getting how many carbon compound? 3 3 so 3 2 molecules. 2 molecules, correct. 2 molecules, हाँ. Okay, so 1 नहीं, molecule वो चार्ट में से पायरुविक एसिड एक ही लिखा था ना, इसलिए मेरे को वो याद है. हाँ, एक ही लिखते एक ही बार है, but bracket में लिखा है 2 molecules. Okay, हाँ. so that is important. So ultimately in glycolysis, from 1 molecule of glucose, you are getting 2 molecules of pyruvic acid, 3 carbons each. Okay, and another thing, ATP को हमने energy currency करके बोला था. You also know the meaning of that, right? वो भी discuss कर लिए. And 1 molecule of ATP gives you how much amount of energy? 1 molecule of ATP. एक ATP के breakdown से कितना energy मिलता है? हाँ. 15 point something calories. ज़्यादा हो गया, थोड़ा bargaining कर. ज़्यादा. 1 molecule of ATP gives you dash kilocalories. Kilocalories of energy, याद है? 10.6. ना, और कम. और कम. 4 calories. हाँ, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया. 7.3, याद है? 8 calories of 7.3. Okay, so that is ATP, very significant, है ना? And coenzyme कौन सा है इस pathway में? जो रेडी हाइड्रोजन डोनर भी काम करते हैं, वो कोफैक्टर है. कोफैक्टर इज ऑलवेज अ मेटल एलिमेंट. कोएंजाइम क्या है? ऐसा एक्सोलेज वैसे करके था ना. वो एंजाइम है. कोएंजाइम क्या होता है? हाँ, ये कंफ्यूजन समझना है, क्लियर होना है. हाँ. हाँ, जा भी. बोलो. एंजाइम. वो एंजाइम क्या? NADH2 दो ही था ना याद है? ओके, NADH2. हाँ.
जो हाइड्रोजन डोनर तो है, जो coenzyme। रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज द कोएंजाइम। ठीक है, तो कोएंजाइम NADH2, कोफैक्टर Mg+2, एंड एक स्टेप में Zn+2 भी आता है कोफैक्टर, वो भी याद रखना है, राइट। एंड जो एंजाइम है वो हर स्टेप के लिए अलग अलग है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस, सबसे स्टार्टिंग के जो कुछ स्टेप्स है वो प्रिपरेटरी फेज। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड अप ओवर देयर? इसमें प्रिपरेटरी फेज में कितना ATP मॉलिक्यूल यूज होता है? 2। 2। एंड देन द नेक्स्ट इज पे ऑफ फेज, याद है? हाँ, पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ हाँ, फेज में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के? 4 4। और 2 यूज होते हैं, फिर 2 मिलते हैं। Exactly. So that is why net gain of glycolysis is 2 ATP per glucose. ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस समझा अच्छे से? हाँ। ओके, एंड इसके बाद हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन भी डिस्कस कर लिया था पूरा, बिकॉज एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन स्टेप है, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप व्हिच फॉलोज इन एनारोबिक, दैट इज फर्मेंटेशन। करेक्ट। तो फर्मेंटेशन 2 टाइप के होते हैं, one is lactic acid fermentation and the other one is alcoholic fermentation. Okay, so lactic acid में there is no decarboxylation involved, कि मतलब यहाँ तो pyruvic acid 3 कार्बन कंपाउंड है, उससे जो lactic acid बन रहा है that is also a 3 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। Okay, and alcoholic fermentation में from the pyruvic acid there is a decarboxylation step which is involved, so you get acetaldehyde जिसका फिर further reduction होता है, from that you get ethanol. Okay, तो alcoholic fermentation होता है animal cells में या कुछ yeast cells में, sorry animal नहीं, plant cells में, plant cells and yeast cells में। Okay, तो yeast में ऐसा एक point मैंने पढ़ा आज ही कि the cells have that mechanism कि sometimes yeast के cells में अगर fermentation ज़्यादा ही हो गया and there is a more what you can say accumulation of alcohol within the yeast cell, तो वो yeast क्या करते हैं, अपने cells में alcohol इतना भर देते हैं कि they poison themselves to death. Okay, it's like a kind of a suicide for the yeast. तो yeast के cells में अगर alcohol 13% से ज़्यादा हो गया तो दे आर सेट टू पॉइजन देमसेल्व्स, कि उससे ज्यादा वो सेल सर्वाइव ही नहीं करेंगे। हाँ, उससे ज्यादा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्या हो जाता है कि व्हेन इट टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, नाउ व्हेन वी विल सी द एनर्जेटिक्स दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड बेटर, बट इतना एटलीस्ट पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के ये 2 स्टेप में तो कोई ATP मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, सो व्हाटएवर ATP इज प्रोड्यूस्ड इज ओनली इन द ग्लाइकोलाइसिस स्टेप, 2 ATP इज द नेट गेन। तो पूरे एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द नेट गेन इज जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड मैंने जनरल रिएक्शन कल बताया था पूरे रेस्पिरेशन का, करेक्ट। सो इन दैट जनरल रिएक्शन आई टोल्ड यू कि जो रेस्पिरेशन में एनर्जी का रिलीज हो रहा है दैट इज इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तो इट इज जस्ट रेडिएटेड आउट, बाकी बचा केमिकल एनर्जी वेयर यू आर गेटिंग द ATP। तो अगर सिर्फ 2 ही ATP बन रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि बाकी का जितना परसेंटेज है वो सिर्फ हीट एनर्जी। तो अल्टीमेटली व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनी सेल्स देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज लिबरेटेड आउट, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द सेल्स। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस। ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट फॉर एनारोबिक। तो अपने मसल सेल्स में भी जैसे हमने बताया कि whenever there is a rigorous exercise carried out, lactic acid का accumulation होता है, so that leads to something called muscle fatigue. What is the meaning of the word fatigue? डिजीज? नहीं, तो fatigue का मतलब है extreme tiredness, उसको fatigue बोलते हैं। ओके, जरूरत से ज्यादा जो ओके। एकदम ऐसा पेनफुल हो जाता है कि टायर्डनेस हो गया, मसल्स काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू रिकवर बैक, दैट इज फटीग। ओके, तो ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट?
ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप हमने पूरा देख लिया है। नाउ आफ्टर दिस एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन द ग्लाइकोलाइसिस गेट्स कंप्लीटेड, अब इसके आगे का जो पार्ट है ग्लाइकोलाइस एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इन्वॉल्व्स द फर्दर कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू समथिंग कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, पायरुविक एसिड जो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर कंटिन्यू होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कन्वर्जन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, दैट इज फॉलोड बाय समथिंग कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ETS, in which there is terminal oxidation also which takes place. तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे कंप्लीट होता है, ठीक है। सो you know very well that anaerobic respiration का या एरोबिक का जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप था, it takes place in the cytoplasm. So cytoplasm is common to every living cell, so there was no cell organelle involved as such. Okay, but जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब रेस्पिरेशन हो रहा है, this part of the respiration, okay, conversion into acetyl coenzyme A, the Krebs cycle, ETS, terminal oxidation, this is taking place in the mitochondria of the cell. Okay, अब सेल स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डू यू रिमेम्बर दैट प्रॉपर्ली? ओके, अच्छी तरह याद है या एक बार रिवाइज कर ले? एक क्विकली एक ओवरव्यू देख लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि विच पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। सो ओके, सी now when you are talking about mitochondria, mitochondria is also called as the dash of the cell. बोल, very important part. ब्रेन न्यूक्लियस है ना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? स्टोरिंग हाउस, स्टोर हाउस। बिल्कुल नहीं, वो तो वैक्यूल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या बन रहे हैं? अल्टीमेट एम ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनल वेयर एनर्जी प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, तो उसको क्या बोलेंगे? डैश ऑफ द सेल। एनर्जी हाउस। वाह, रिमेम्बर पावर हाउस। ओके, हाँ, पावर हाउस। हाँ, ऐसे याद रखना। वही हाउस याद है, वो पावर का हाउस है वो नहीं पता है ना। इट इज कॉल्ड पावर हाउस, रिमेम्बर। पावर हाउस भी बोलते हैं, एनर्जी मिल्स बोलते हैं, या एटीपी मिल्स बोलते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद कर। द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इज समवॉट लाइक दिस, ओके, एंड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल, जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, है ना। सो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, विच इज अ कंटिन्यूअस वन, बट द इनर मेम्ब्रेन इट इज नॉट कंटिन्यूअस वन। यू रिमेम्बर दैट? ये देख, ऐसा रहता है ना। yes. There are invaginations or folds inside, right? What are these finger shape projections known as? इनको क्या बोलते हैं जो इनर मेम्ब्रेन से ऐसे प्रोजेक्शंस आते हैं? अंदर से याद आ रहा है कुछ? This is nothing but outer membrane. Okay, ये इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? These invaginations, something with C. सीलिया नहीं, ए बाप रे, सीलिया अंदर रहेगा। नहीं, नहीं याद है? सेल स्ट्रक्चर, स्नेहा। This is क्रिस्टे, याद है? क्रिस्टा। हाँ, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। सिंगुलर इज क्रिस्टा, प्लूरल इज
क्रिस्टे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हाँ, ओके, या ठीक है। तो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, ये जो बाहर अंदर वाला स्पेस बचा हुआ है, दैट स्पेस कंटेन्स अ फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? विथ एम। द स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा था, सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोप्लाज्म। वाह वाह वाह, अच्छा साइंटिस्ट बनेगी। इट इज मैट्रिक्स। हाँ, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स करके बोलते हैं। ओके, रिमेंबर दैट। नाउ यू नो वेरी वेल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल करके बोलते हैं, है ना, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, सर्क्यूलर डीएनए, तो इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियर डीएनए। ओके, एंड देन ये जो क्रिस्टे है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑन द क्रिस्टे यू विल फाइंड देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, याद है? इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट की तरह। व्हाट आर दीज? बल्ब। बल्ब जैसे दिखते हैं, नाम बल्ब नहीं है। व्हाट आर दीज? हेयर लाइक रहता है ना ये। Do you remember F1 particles? हाँ, Okay, F1 particles also called oxysomes, also called ATP particles, also called ATP elementary पार्टिकल। particles. याद आ रहा है कुछ? हाँ, F1 पार्टिकल ही था बस। नहीं, 5 नाम है उसके। F1 particle, oxysome, ATP particle, elementary particle. It is also called Fernandez-Muran subunits. इतना बड़ा सारा नाम क्यों दिया है? ये 5 नाम है एक ही चीज के। ठीक है, अभी इससे ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते। मेन थिंग व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, सी, ओके, जो F1 पार्टिकल्स है ना, इसका अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इट हैज गॉट अ बेस, ओके, देयर इज अ स्टॉक एंड देयर इज अ हेड, ठीक है। तो जो हेड पीस है, ये हेड हो गया, ओके, ये स्टॉक और ये बेस। अब ये जो बेस है ना, दिस पार्ट, इट इज प्रेजेंट टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है? यहाँ पे रहेगा वो बेस। हाँ, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं F0, रिमेंबर दैट, द बेस पार्ट ऑफ दैट F1 पार्टिकल। ओके, तो अभी हम लोग जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बना है, दैट विल अंडरगो कन्वर्जन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद देन इट विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा है? इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, यहाँ क्रेब्स साइकिल होगा। एंड क्रेब्स साइकिल हो जाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विच इज फॉलोड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, ETS, वो होता है F1 पार्टिकल्स। ओके, ये बहुत जरूरी है। यस। ठीक है, तो उस टाइम पे ये पॉइंट्स याद रखना है कि F1 पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन दैट इज ETS टेक्स प्लेस एंड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्वड इन क्रेब्स साइकिल। ओके, एंड ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो हर एक स्टेप का लोकेशन बहुत जरूरी है। ओके, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और क्या मिलेगा? अभी देखो, ये जो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, तो दोनों के बीच में देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट। ओके, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, जस्ट नाम याद रखना है। देयर इज अ DNA ओवर हियर, जो मैंने बताया,
Mitochondria has got its own ribosomes. Okay, and then besides that, in the matrix there are starch granules also present. Okay, बस ये सब याद रखना. But main thing from respiration point of view, what you are supposed to remember, you should know the matrix and you should know F1 particles, and each F1 particle having 3 parts, that is the base, the stalk and the head. तो जो रेस्पेक्टिव एंजाइम्स है, क्रेब्स साइकिल में भी हम बहुत सारे एंजाइम्स देखेंगे, वो सारे एंजाइम्स या मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. ईटीएस होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है, वी विल सी दैट नाउ, वो सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स F1 पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, इसीलिए ईटीएस यहाँ पर होता है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स प्रॉपर्ली. समझा अच्छे से? ठीक है. यस. सो लेट्स कम बैक टू दिस. तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमें देखना है कि कन्वर्जन ऑफ दैट पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है. अब ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. रिमेंबर दैट. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब देयर इज वन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व एंड देयर इज वन डीकार्बोक्सिलेशन इन्वॉल्व. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ओके. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो दोनों चीज इस रिएक्शन में हो रहा है. तो यहाँ पे देखना रिएक्शन में, दिस इज पायरुविक एसिड. ओके, सो यहाँ पर एक पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बनेगा. ओके, सो देयर विल बी एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए जो है वो साइटोसॉल में रिसाइकल होते रहते हैं. ओके, एंड NAD प्लस भी रिसाइकल हो रहा है. तो पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, गेटिंग एडेड टू NAD प्लस, तो यू गेट NADH2 या NADH प्लस H प्लस. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, एंड अलोंग विद दैट अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन. तो जो बचा क्या? पायरुविक एसिड में 3 कार्बन कंपाउंड है, बट उसके साथ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रही है, कोएंजाइम ए ऐड हुआ, एसिटाइल ग्रुप रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड. Okay, so because a 3 carbon compound is getting converted to a 2 carbon compound, there is an evolution of a carbon dioxide molecule. That is why it is decarboxylation. Okay, pyruvate dehydrogenase complex. समझा? हाँ. ठीक है. Okay, just a second. Okay, so एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे इवॉल्व हो जाते हैं, and that is why जो acetyl coenzyme A जो है, this is a 2 carbon compound that is produced over here, and this reaction we call as the connecting link between what? Glycolysis and Krebs cycle. Okay, तो acetylation of pyruvic acid उसको हम बोलते हैं connecting link. तो अभी जो acetyl coenzyme A बना, this acetyl coenzyme A will continue with the Krebs cycle. ओके, समझा अच्छी तरह से रिएक्शन? यस. ठीक है. सो ब्रीफ अगर क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. तो ये लिखना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मस्ट बी इन्वॉल्व्ड. ओके, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, इट्स अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ओके, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड है. And then ये enzyme present है mitochondria in the case of eukaryotes and prokaryotes में cytoplasm. So the products which you get are acetyl coenzyme A and carbon dioxide. ठीक है. तो अब ये जो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, देखना कि जो PDC है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम्स बनाने के लिए विटामिन B1 इज रिक्वायर्ड एज द कोएंजाइम. ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके जानती होगी, वाटर सोल्यूबल विटामिन है ना. बी कॉम्प्लेक्स एंड सी को वाटर सोल्यूबल बोलते हैं. सो B1 इज कॉल्ड एज थायमिन. ये विटामिन जरूरत है ये कोएंजाइम बनाने के लिए. तो ये PDH जो कॉम्प्लेक्स है, ये विटामिन B1 के एब्सेंस में काम ही नहीं करेगा. तो इमेजिन कोरिलेट दिस विद द डाइट, कि अपने डाइट में विटामिन B1 कितना जरूरी है.
Okay, कि when this is present in your diet, it reaches every cell of the body. Okay, and once it reaches every cell of the body, it is able to produce this pyruvic acid dehydrogenase complex, because of which the aerobic respiration is able to continue towards Krebs cycle, and then the further oxidation continues. तो इसका डेफिशिएंसी अगर होगा, थायमिन डेफिशिएंसी, तो उससे क्या होगा, will be a condition called pyruvic acidosis and lactic acidosis, which are life threatening conditions. Imagine, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ेगा ही नहीं ना. नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा जब होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो यू आर गेटिंग टोटली 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में यू आर गेटिंग ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स. तो इमेजिन एनर्जी डिफरेंस कितना ज्यादा है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, अगर एरोबिक होगा ही नहीं तो सेल को मजबूरन एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ा. So there will be accumulation of these conditions, and उतना एनर्जी नहीं मिलेगा सेल को, तो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो गया. तो ये एक बड़ा रीजन है बताने के लिए कि बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ मेंटेनेंस, कि यू शुड बी एबल टू इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखना है. राइट, ओके. सो कमिंग बैक टू द रेस्पिरेशन, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कंटिन्यू करेगा एक बढ़िया सा पाथवे विच इज कॉल्ड Krebs cycle, also known as the TCA cycle, also called as citric acid cycle. तीन अलग अलग नाम है एक ही पाथवे, एक ही साइकिल. अब इसको हम लोग वर्ड बोल रहे हैं साइकिल, रिमेंबर दैट, बिकॉज ये साइक्लिक पाथवे है. ओके, ग्लाइकोलाइसिस वाज अ पाथवे. ओके, तो अभी इसको Krebs cycle क्यों बोलते हैं? Because all the reactions which are there in this cycle were discovered for the first time by a person called Sir Hans Krebs. इधर लिखा है. Okay, anyway, okay, you have to remember the person who discovered this, his name was Sir Hans Krebs. इसलिए उनके नाम पे पड़ा है Krebs cycle. तूने डिस्कवर किया होता तो स्नेहस साइकिल. Okay, it is also called as TCA cycle. TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इसमें जितने भी एसिड कंपाउंड्स बनते हैं दे आर ऑल हैविंग 3 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स. इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA. ये साइंटिस्ट के नाम का इनिशियल्स नहीं है जैसे EMP में था. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो Krebs साइकिल हम देखेंगे, द फर्स्ट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है दैट इज सिट्रिक एसिड. इसलिए इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल. ओके, तो द 3 नेम्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो, यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, तो ये कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सबके लिए. एंड ये रिएक्शन पाथवे, ये Krebs साइकिल दूसरे रीजन के लिए भी जरूरत है, बिकॉज इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं they are sometimes utilized not to complete the Krebs cycle but for some other physiological process within the cell. कि कभी कुछ अमीनो एसिड बनाना है, कुछ अमाइड्स बनाने हैं, तो उनके लिए भी इसके इंटरमीडिएट कंपाउंड सेल में यूज किया जाता है. And that is another reason why respiration can also be called as amphibolic pathway instead of fully catabolic pathway. Okay, so let us take a look at the reactions of the Krebs cycle. Ready? ठीक है, तो नाउ यू नो, छोटा सा पाथवे दिख रहा है सामने. ओके, तो इसमें क्या क्या याद रखना है? एट ईच स्टेप, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा, यू शुड नो व्हाट इज द रिएक्टेंट, व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स. कि कभी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, कभी एंटर किया, कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कभी कोई एटीपी फॉर्मेशन हुआ. ओके, नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स विल चेंज. ओके, या एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, कोफैक्टर कौन सा है, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो ध्यान से सुन, समझ अच्छे से. ठीक है, सो सी, पायरुविक एसिड हमने देखा, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी देख लिया, ये रिएक्शन हो चुका है. ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज इट कंटेन? एसिटाइल कोएंजाइम ए में
ये जो एक ही कार्बन है ना? हाँ हाँ, ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम है, कौन सा? ये जो हाँ है ना। ये वाला ना? हाँ, तो इसमें कितने हाँ कार्बन एटम्स हैं? एक। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन था, एक CO2 ओके। निकल गया, तो कितना बचा? हाँ दो को। हाँ, ओके, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल। अब ये साइक्लिक पाथवे चल रहा है, एज यू कैन सी, ओके। तो क्रेब्स साइकिल में शुरुआत एक्चुअली होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का रिएक्शन विथ ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट जो है, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो यू आर गेटिंग अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, सब 1 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। Why it is called condensation? Because 4 carbon compound oxaloacetate is combining with a 2 carbon compound acetyl coenzyme, and you are getting a compound citric acid which is 6 carbon. तो citric acid यहाँ पे बन रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है citrate synthase. And why it is called condensation? Because there is an addition of water. Can you see this arrow mark अंदर आ रहा है, okay? तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो कोएंजाइम ए वाला पार्ट था, दैट इज रिमूव्ड, और ये रिसाइकल करते रहते, इसीलिए जो सिट्रिक एसिड बना इसमें कोएंजाइम ए नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ओके। सो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए combines with 4 carbon oxaloacetate in the presence of the enzyme citrate synthase, addition of water, that's by condensation, removal of the coenzyme A part. So you are getting the first stable compound of Krebs cycle, which is a 6 carbon compound, citric acid. And इसी रीजन की वजह से मैंने बताया था कि this Krebs cycle is also called as citric acid cycle. Okay, the first step is clear properly. Okay, अब ये जो citric acid 6 कार्बन, इसका क्या होगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। सो रिमूवल ऑफ वाटर, उसको हमने कल एक नाम दिया था डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो देयर इज नथिंग एल्स इन्वॉल्वड ओवर हियर। तो रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंजाइम का नाम है एकोनिटेस। ये याद रखना है क्योंकि एकोनिटेस इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट इमीडिएट रिएक्शन आल्सो, सेम एंजाइम, ओके। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हुआ, सिट्रिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हुआ, तो यू आर गेटिंग एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉल्ड सिस एकोनिटेट या सिस एकोनिटिक एसिड। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वगैरह अभी चेंज नहीं हुआ, ओके। इट इज सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट में फिर से डिहाइड्रेशन होगा, सॉरी इट इज नॉट डिहाइड्रेशन, इट इज हाइड्रेशन, या मिस्टेक है, बिकॉज यू कैन सी देयर इज एन एडिशन ऑफ वाटर, तो वो डी वर्ड हटा देना, इट इज हाइड्रेशन, ओके। तो क्या हो रहा है, पहले वाटर ऐड हुआ, फिर रिमूव हुआ, फिर ऐड हुआ, ऐसे याद रखो। तो इट इज अ हाइड्रेशन स्टेप। तो हाइड्रेशन होते ही एकोनिटेस के ही प्रेजेंस में यू आर गेटिंग एन आइसोमर ऑफ सिट्रिक एसिड व्हिच इज कॉल्ड आइसोसिट्रिक एसिड, okay, no change in the carbon atom, 6 carbon. This part is clear, okay? Yes, first time देख रही है तो एकदम लगेगा ही बहुत कुछ है करके, but जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे it will be easy for you, so you have to write and practice, there is no other way, ठीक है। तो पहला कौन सा कंपाउंड है, एसिटाइल विथ ऑक्सैलोएसिटेट, you are getting citric acid, citric acid का डिहाइड्रेशन सिस एकोनिटिक एसिड, तो सिस एकोनिटेट, इसलिए एंजाइम भी एकोनिटेस, ऐसे करके वर्ड्स याद रखना है तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर, राइट।
इसका होगा हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, तो यू आर गेटिंग आइसोसिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक, सिसेकॉनिटेट और आइसोसिट्रिक, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच? फर्स्ट वन में 4 ऑक्सैलो एसीटेट, और फिर उसके बाद 2, फिर 2 4 मिला के 6 करेक्ट। सिट्रेट, और उसके बाद ये गया, कितना बचा था? सिट्रेट में 6 है, हाँ, तो आइसोसिट्रेट में कितना? आइसोसिट्रेट में भी 6 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन नहीं गया ना, हाइड्रोजन एग्जैक्टली, गया। करेक्ट। ऐसे ही देखना, जब भी किसी हाँ, भी स्टेप में, जैसे ये वाले स्टेप में देख, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है तो इमीडिएटली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल रिड्यूस, या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल रिड्यूस। अगर CO2 कहीं लिखा हुआ नहीं है तो पहले और बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन द सेम, ऐसे याद रखना। ओके, बिकॉज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल एडिशन हो रहा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये सब ट्रिक्स है, इन सबको याद रखने के लिए। फाइन, अभी आइसोसिट्रिक एसिड बन गया, अब इसका होगा डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है डायरेक्टली यहाँ पे NaDH लिखा हुआ है, देखिए कि आइसोसिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकल गया, ऐड हो गया NaDH को। तो आइसोसिट्रेट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। जहां कहीं भी डिहाइड्रोजनेस लिख दिया, इसका मतलब वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसके ऑक्सीडेशन हो से यू आर गेटिंग अनदर कंपाउंड ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। तो इसके ऑक्सीडेशन के वजह से जो हाइड्रोजन निकल गया, तो यू आर गेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH। एक NaDH तो यहां बन गया बिकॉज आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन निकल गया। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज एनर्जेटिक्स में हम देखेंगे ये NaDH2 का क्या रोल है। But for now, you just understand कि isocitrate to oxalosuccinic acid, that conversion removes 1 hydrogen, and in which that process you are getting NaDH2. Okay, यहाँ पे दूसरा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, so again there is no change in the carbon atom number because सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन हुआ है। तो सिट्रिक एसिड से लेकर ऑक्सैलोसक्सेनिक तक they are all 6 कार्बन कंपाउंड्स। अब इसके अगले स्टेप में देखना, oxalosuccinic acid is undergoing decarboxylation. There is a removal of carbon dioxide. Okay, तो जब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पे एंजाइम का नाम गलत दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट इज रिटन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, वो तो ऊपर था ना। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम डिकार्बोक्सिलेशन का? इट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट राइट दिया डिकार्बोक्सिलेज। है। वहां करेक्ट दिया है क्या? हाँ, वही है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। नहीं, दैट इज इनकरेक्ट, वो चेंज कर। क्योंकि यहाँ पे वहां पे डिहाइड्रेशन दिया था ना थर्ड स्टेप पे, यहाँ पे हाइड्रेशन दिए। हाँ, वो हाइड्रेशन करेक्ट है, दिस वन ना यूर टेलिंग। तो हाँ तो ये हाइड्रेशन आएगा यहाँ पर। हाँ ओके, एंड यहाँ पे आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलोसक्सिनिक के बीच में जो लिखा है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, वो करेक्ट है। अभी जो ऑक्सैलोसक्सिनिक से अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये वाला स्टेप, हियर द एंजाइम नेम यहाँ जो लिखा है वो गलत है, चेक इन योर टेक्स्ट बुक। इट शुड बी ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज। वो लिखा है क्या? नहीं। हाँ, तो वो चेंज कर दे, मैं यहाँ लिखता हूँ तो लिख ले वो भी। इट शुड बी ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज।
ये लिखा है देखना। ओके, ये इधर आएगा इस वाले स्टेप में। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस यू विल राइट ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। वो यहाँ पे टाइपो एरर है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किस में से रिमूव हो रहा है, ऑक्सैलोसक्सिनिक में से, इसलिए एंजाइम का नाम भी यही है। ओके, तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड था, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो इसमें जो प्रोडक्ट बना दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। यू कैन सी, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विल हैव हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5। करेक्ट। ओके, तो ये याद रखना है कि पूरे क्रेब्स साइकिल में ये एक ही कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन एटम, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो इसमें देयर इज नो अदर बाय प्रोडक्ट, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नॉट चेंजिंग, सब 1 मॉलिक्यूल ही है। ओके, now from this alpha ketoglutaric acid this will undergo decarboxylation once again. Okay, it will undergo decarboxylation once again. तो क्या बनेगा, 4 कार्बन कंपाउंड called succinyl coenzyme A. ये देख, okay, there is a 4 carbon compound called succinyl coenzyme A because there is a removal of carbon dioxide. Along with that there is addition of coenzyme A also. जो coenzyme में पहले acetyl में था वही recycle हो रहे थे। Okay, so removal of carbon dioxide is taking place, so it is oxidative decarboxylation. And यहाँ पर जो enzyme है it is alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. Okay, यहाँ पे इन स्टेप में 3 things you have to remember. One is decarboxylation taking place. Secondly, addition of coenzyme A going on. And thirdly, there is a dehydrogenation going on. Removal of hydrogen. तो ये जो हाइड्रोजन निकला, again you are getting one more molecule of NADH2. Okay, तो NADH2 अभी तक हमने 2 स्टेप में बनते हुए देखे, इसलिए ऐसे लिखा होगा। So from this alpha ketoglutaric acid to succinyl coenzyme A, you are getting 3 main steps, points in this reaction: removal of carbon dioxide, addition of coenzyme A, and removal of hydrogen to form NADH2. That is why it is called alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. That is the enzyme. तो इसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन एटम्स हो गए अभी? 4। करेक्ट। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो बाकी का क्रेब्स साइकिल है टिल हियर, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था 4 कार्बन है, नाउ देयर इज नो चेंज इन द कार्बन एटम्स, अभी सब 4 ही रहेंगे। तो क्रेब्स साइकिल में फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज 4 + 2, तो 6 कार्बन एटम्स, देन एक स्टेप में 5 कार्बन एटम, एंड देन अगेन 4, एंड देन ऑनवर्ड्स इट इज ऑलवेज 4। ओके, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में नेक्स्ट स्टेप दैट इज टेकिंग प्लेस, इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था फॉस्फोराइलेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जिसके 3 टाइप हमने देखे थे, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो अब इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करके हम बोल रहे हैं, तो द सबस्ट्रेट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम, इसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है। ओके, तो इसमें जब फॉस्फेट इसमें से फॉस्फेट रिमूवल हो रहा है, तो यू आर गेटिंग जीडीपी टू जीटीपी। जैसे एटीपी मॉलिक्यूल है,
उसी का एक सिमिलर मॉलिक्यूल है जीटीपी। तो 1 molecule of GTP corresponds to 1 molecule of ATP. ओके तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ADP it is GDP, guanosine diphosphate, to which one phosphate gets removed from here and there is a formation of 1 GTP molecule. ओके तो इट्स लाइक जैसे 100 रुपीज का नोट है, दो टाइप के आते हैं ना अपने पास, एक पुराना वाला करेंसी नोट है और एक नया वाला, बट वैल्यू उसका 100 रुपीज ही है। दुकान में अगर मैं देता हूँ तो पुराना दो या नया दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। So it's like I am giving ADP, ATP या GTP. It's one and the same. ऐसे याद रखना है. Okay. So in this step, because of this substrate level phosphorylation, there is a formation of a GTP molecule. Along with that, one more thing takes place. अब ये succinyl coenzyme A था. अब ये coenzyme A remove हो गया. तो immediate एक step में add हुआ था, next step में ही remove हो गया. So removal of that coenzyme A. Okay, and there is also a dehydrogenation taking place. तो succinyl coenzyme A synthetase जिसमें से FADH2 बनता है. ओके बाकी दोनों में NADH2 देखा था, यहाँ पर क्या बन रहा है? FADH2, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन. ठीक है, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग सक्सिनिक एसिड. ओके अब सक्सिनिक एसिड का फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो यू विल गेट फ्यूमेरिक एसिड. नो चेंज इन कार्बन एटम्स, नथिंग. फ्यूमेरिक एसिड का फिर से हाइड्रेशन होगा, एडिशन ऑफ वाटर. फ्यूमरेस इज द एंजाइम, यू गेट मैलिक एसिड. ओके मैलिक एसिड का होगा डिहाइड्रोजनेशन, तो यहां से हाइड्रोजन निकला, एक और NADH2 बन गया. तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो ये क्रेब्स साइकिल को फिर से कंटिन्यू करेगा. समझ रहे हैं? ओके तो इन दिस क्रेब्स साइकिल दैट वी सॉ, देयर इज one molecule of ATP which is directly produced in the form of GTP. वो इस वाले स्टेप में था. There are 3 molecules of NADH2 produced. एक है इस स्टेप में आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलोसक्सिनिक, सेकंड है अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, एंड थर्ड वन इज मैलेट टू ऑक्सैलोएसिटेट. तो कौन से रिएक्शंस में NADH2 बनता है वो भी याद रखना. तो इन वन क्रेब्स साइकिल यू आर गेटिंग 3 molecules of NADH2, 1 molecule of GTP and 1 molecule of FADH2. ओके अभी ये भी एक मिस्टेक है यहाँ पर, दैट आल्सो यू नीड टू चेंज. ये जो FADH2 वाला पार्ट है, ये जो है ये इसके ऊपर वाले रिएक्शन में हो रहा है, सक्सिनेट टू फ्यूमेरिट. ओके यहाँ नहीं हो रहा है वो, बिकॉज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस करके लिखा हुआ है, तो सक्सिनेट का डिहाइड्रोजेशन हो रहा है जिसके वजह से FADH2 बन रहा है. So that part you need to change. Instead of FADH2 over here, you are going to write it between succinate and fumarate. Okay? समझा अच्छी तरह से क्रेब्स साइकिल का? हाँ. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, नाम याद रखना है, बट ऐसे अगर सॉर्ट आउट करके लर्न करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस जब हुआ था, we started with 1 molecule of glucose. तो glycolysis के end में from 1 molecule of glucose you got 2 molecules of pyruvic acid. Yes. Both the pyruvic acid molecules will undergo acetylation and Krebs cycle independently. तो मतलब एक glycolysis के लिए 2 Krebs cycle चलते हैं. ओके तो हमें काउंटिंग कैसे करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ओके तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर विल बी 1 ग्लाइकोलाइसिस, 2 एसिटाइलेशन, 2 Krebs cycles.
ऐसे काउंट करना है। तो अगर मैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से बोलता हूँ, देन टिल नाउ in this Krebs cycle you must get 6 molecules of NADH2 हाँ because एक Krebs cycle में 3 बन रहे हैं तो 2 में 6। तो उसी तरह से FADH2 कितना बनेगा? 2 GTP कितना बनेगा? 2 अभी समझा? हाँ ठीक है, because this is for each Krebs cycle you have to multiply this by 2। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिमूव हुआ इन दिस Krebs cycle? एक कनेक्टिंग लिंक में रिमूव हो गया, ओके। हाँ सेकेंडली यहाँ रिमूव हुआ, हाँ थर्डली यहाँ रिमूव हुआ, ओके। तो पायरुविक एसिड ऑनवर्ड्स, acetylation and Krebs cycle included, from 1 molecule of glucose how many carbon dioxide removed? वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल से जो 2 पायरुविक एसिड बना है, उसके आगे का हाँ जो स्टेप है एसिटाइलेशन एंड Krebs cycle included, तो how many carbon dioxide हाँ molecules are removed totally? चलिए 6 Correct, okay, because 1 in acetylation step and 2 in the हाँ Krebs cycle step। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, हाँ ओके। NADH2 कितना, ATP कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, ओके। ये सब नंबर्स वाले क्वेश्चन पॉसिबल है एग्जाम, बट इसमें जो करेक्शंस था वो कर लिया प्रॉपर? हाँ वो बुक में था, मुझे बस वो ऑक्सी इधर हुआ था ना, ऑक्सैलो एसिड ऑक्सी सक्सिनेट, हाँ हाँ वो वही रॉन्ग था तो वो किया करे, बाकी हाँ। सब सही दिया। और FADH2 वाला भी किया ना बराबर? हाँ वो पहले से ही सही दिया है। अरे वाह, तो करेक्शन किया लेकिन आधा ही किया। हाँ ओके ठीक है, ओके। सो Krebs cycle we have completed, ओके। अभी एग्जाम में, अभी सपोज एग्जाम हुआ एंड लॉन्ग आंसर्स वगैरह लिखने को बोला गया, तो कंप्लीट Krebs cycle कैन बी अ फुल लेंथ क्वेश्चन। तो ये पूरा हाँ पाथवे बनाकर उसको एक्सप्लेन भी करना है। So you have to explain in terms of those words: decarboxylation, dehydrogenation, oxidation, okay, ऐसे करके कंडेंसेशन, हाइड्रेशन, जो भी है ऐसे हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना, ठीक है। एंड देन जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि जो Krebs cycle है या जो रेस्पिरेशन है, हम लोग इसको पूरी तरह से कैटाबॉलिक भी नहीं बोल सकते। If it is undergoing complete oxidation only, then it is catabolic, okay, but sometimes what happens is, अभी ये जो Krebs cycle हमने देखा, इसके जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं। तो sometimes what happens is in the cell, depending upon the requirement of the cell, कि ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड तक Krebs cycle चला, बट इसके आगे यही कंटिन्यू करने के बजाय इट विल गो इनटू अनदर पाथवे। तो कुछ अमीनो एसिड बनाने के लिए जाएगा, कुछ अमाइड्स बनाने के लिए जाएगा, या कुछ प्रोटीन बनाने के लिए काम आएगा। तो समटाइम्स द सेल विल रिक्वायर दैट। तो अगर वैसा करते हैं सेल, देन वी कॉल इट एम्फीबोलिक पाथवे। इंस्टेड ऑफ कैटाबॉलिक इट इज एम्फीबोलिक, ओके। जैसे यहाँ पे दिया है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट, ओके, ऑक्सैलो एसिटेट, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रीकर्सर्स। प्रीकर्सर्स का मतलब है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। तो फैटी एसिड्स, ओके, या ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये बनाने के लिए। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आर डिफरेंट अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, तो वो भी कॉन्स्टेंटली सेल में बनाते रहना पड़ता है, बिकॉज ऑन द अदर साइड प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। टीआरएनए को एक एक अमीनो एसिड उठा के लाना होता है एमआरएनए के साथ चिपकाने के लिए, ओके। तो वो अमीनो एसिड भी सेल में बनते रहेगा, तो उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल्स है वो इन्हीं में से उठाना होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथ, ठीक है। Krebs cycle पूरी तरह क्लियर है? एनी डाउट्स? ओके, ठीक है। So we have completed with Krebs cycle, एरोबिक रेस्पिरेशन का एक मेजर स्टेप।
ओके अभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ दोज बाई प्रोडक्ट्स NADH2 FADH2 ATP एंड ऑल, ये अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसका पूरा सब प्रोसेस देख लेंगे. एंड देन वी हैव टू टेक अ लुक एट दिस बैलेंस शीट एनर्जेटिक्स. ये अच्छे से याद रखना. दिस विल बी लाइक अ समरी राइट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. ओके तो नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज कर ले. Go through it completely before my next session so that you are able to answer all this and your questions का number वगैरह सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. So we will stop here for now. Okay. I hope acetylation and Krebs cycle is completely clear. Understanding हो गया रहेगा. Of course you have to learn and remember from your side. Okay. तो वो practice करना है, पाथवे अच्छे से देखना है, लिख के practice करो. Only then you will remember. Right?